सो हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं. सो दिस इज डे 6. आई थिंक सो इट्स डे 6. या राइट. सो इट इज डे 6. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो आज का क्वेश्चन है अल्ट्रा फास्ट मैथमेटिशियन. ठीक है, क्या बोलते हैं? Shapur was an extremely gifted student. He was great at everything including combinatorics, algebra, number, theory, geometry, calculus, etc. He was not only smart but extraordinary fast. He could manage to sum 10 to the power 18 number in a single second. One day in 2030 AD, Shapur was trying to find out if anyone can possibly do calculation faster than him. As a result, he made a very great contest and asked everyone to come and take part of that. Okay. In his contest, he gave the what is that? Contest many different pair of number. Each number is made up from the digit 0 and 1. Okay, so basically the digit is from only 0 and 1. The contestant should write a new number corresponding to the given pair of number. The rule is simple. Now let's move toward the rule. The ith digit of the answer is 1 if and only if the ith digit of the two गिवन नंबर डिफर. मतलब क्या, अगर 1 है और दूसरा 0 है तो उसका आंसर जो है वो क्या आएगा? 1 आएगा. ओके. इन द अदर केस द ith डिजिट ऑफ द आंसर इज 0. मतलब क्या है कि अगर दो डिजिट डिफरेंट है तो उसका आंसर 1 आएगा, और अगर दोनों डिजिट सेम है तो उसका आंसर जो है वो 0 आएगा. ओके. नाउ Shabur made many number and first try its own speed. He saw that he can perform this operation on number of length infinite. Length of the number is number of digit in it. Okay, in a gliss. He always give a correct answer, so he expect the contestant to give correct answer too. He is a good fellow, so he won't give anyone very big number and he always give one person नंबर ऑफ सेम लेंथ. मतलब दोनों जो भी नंबर है वो उसकी लेंथ जो रहेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी. मतलब हमें यूजर से क्या लेने? दो इनपुट लेने. ओके. नाउ वेयर इज दैट? Okay, now you are given to take a part in Shapur contest. See if you are faster and more accurate. Okay, now what is the input? There are two line in each input. मतलब क्या करना है? हमें एक इनपुट लेना है. I'm taking C as the input. Okay, और हमें फिर से क्या करना है? वाइट स्पेस रिमूव करना है. So it's small C equals to input. Then for removing white space we use strip. Okay, C and दूसरा ले लेते हैं D. Input. Then again use strip. Okay. Now हमें क्या बोला है? Each of them contain a single number. It is guaranteed that the number are made from 0 and 1 only, and that their length is same. The number may start with 0. The length of each number does not extend 100. Okay. Write one line. The corresponding answer do not omit the length OS. अभी देखो यहाँ पे आउटपुट क्या देखते? 0 1 है, मतलब आंसर क्या? 1. 0 1 1 1 0 1 0 0 0 ही रहेगा. 1 1 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर सेम नंबर है तो 0 रहेगा. 0 0 सेम ही रहेगा. 0 0 1 फिर से 1. तो यहाँ पे देखो जो आंसर है वो ये आएगा. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 0 0 है और नीचे जो है 1 1 1 है, तो ऑल थ्री आर डिफरेंट. मतलब उसका आंसर जो है क्या आएगा? 1 1 1. यहाँ पे देखो 1 1 0 आएगा. 1 0 1 1 1 0 0 0 0. राइट. ये देखो यहाँ पे भी सेम. देन 0 0 0 ही आएगा. 1 1 0 ही आएगा. 1 1 0 ही आएगा. 1 0 1 0 0 0. समझा गया? अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पता है अगर दो नंबर्स का एडिशन हो रहा है तो कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा. दैट इज रिजल्ट इक्वल्स टू, हम कुछ तो बोल देते कि स्पेस देते. अभी कंडीशन देखते हैं. फॉर आई इन रेंज. ओके. किसकी? लेंथ ऑफ. क्योंकि दोनों की तो लेंथ सेम ही है तो मैं किसी एक को ले लेता हूँ. ठीक है, वेट सेकेंड. या ओके. नाउ इसके अंदर हमें कंडीशन लगानी है कि इफ सी ऑफ आई, मतलब एक का जो इंडेक्स है वो नॉट इक्वल्स टू किसके रहेगा? डी के एलिमेंट से सेम रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? रिजल्ट को है उसको क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, इसमें क्या आना चाहिए? 1. ओके. और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या आएगा इसमें? इसको इंक्रीमेंट कर लेते हैं. इसमें क्या आएगा फिर? 0. राइट. एंड देन लास्ट में हमें क्या करना है? प्रिंट. मैंने अभी RAS लिया है, रिजल्ट नहीं लिया है. ओके. नाउ लेट्स टेक अ इनपुट फ्रॉम दिस लाइक 0 1 1 1 0 and the another one is basically 0 1 1 0 0.
Okay, so the length of this is same. Yeah, right. So let's run it. Mostly we did not get any type of error. Let's check it. The answer is correct or not. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, right? So let's do it for the another one. Let's take it 0 0 0 and 1 1 1. तो आंसर क्या आएगा अपना 1 1 1 ही आएगा, राइट? लेट्स रन इट. सो देखो कितना इजी था. मतलब क्या कि ये दो इनपुट लिए हैं और जिसका एडिशन होगा वो किसी में तो स्टोर होगा, इसलिए एक आर एस करके वेरिएबल लिया है, उसको ब्लैंक रखा है. देन क्या फॉर आई इन रेंज, किसकी लेंथ सी किलो या डी किलो सेम ही आएगा, राइट? क्योंकि दोनों जो स्ट्रिंग है वो सेम है. देन उसमें कंडीशन लगाई है कि सी का अगर एलिमेंट है, मतलब सी का जो भी वर्ड है वो अगर डी के इक्वल नहीं है, मतलब क्या जो भी जीरो है या वन है, जो भी नंबर है वो इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट करना है 1. और मतलब इंक्रीमेंट करना है 1 से. और अगर नहीं है तो क्या होगा फिर 0 प्रिंट होगा. देखो कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस ये पढ़ने में ही इतने लेंदी होते हैं, बट नॉट लाइक इन द स्टडी मैनर. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझा होगा. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. डिस्क्रिप्शन में कोड का प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन भी गिटहब लिंक यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन सी यू, बाय बाय.